السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم ناظرین، عزیزان گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسموں کے لوگ قیامت کے دن ایسے ہوں گے جنہیں اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، جبکہ اللہ رب العالمین کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ یاد رہے کہ 7 قسم کے لوگوں میں صرف مرد حضرات ہی نہیں ہوں گے، بلکہ وہ خواتین، وہ عورتیں بھی ہوں گی جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی۔ تو 7 قسم کے لوگ جنہیں اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، جبکہ اس کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، ان میں سب سے پہلا شخص جو ہوگا وہ ہوگا الامام العادل، انصاف اور بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ جو اپنی حکمرانی میں چھوٹے بڑے تمام معاملات میں اپنے رعایا کے درمیان انصاف کرتا ہو اور اپنے تمام تر عہدیداروں کو بھی عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کا حکم دیتا ہو، نہ وہ بادشاہ کسی پر ظلم کرتا ہو اور اپنے تمام تر عہدیداروں کو بھی ظلم سے باز رہنے کی تاکید کرتا ہو۔ الامام سے مراد صرف بڑے بڑے بادشاہی لوگ مراد نہیں ہیں، بلکہ الامام سے وہ تمام لوگ مراد ہیں جنہیں فیصلہ کرنے کا اختیار رہتا ہے۔ مثلا قاضی، وہ تمام لوگ جو فیصلہ کرتے ہیں، جن کے فیصلے کو لوگ تسلیم کرتے ہیں، جن کے فیصلے کو لوگ مانتے ہیں، چاہے وہ گاؤں کا مکھیا ہو یا گاؤں کا کوئی بڑا آدمی جو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہو، یا باپ ہو جو اپنے اولاد کے درمیان فیصلہ کرتا ہو، یعنی اس سے ہر وہ لوگ مراد ہیں جنہیں فیصلہ کرنے کا اختیار رہتا ہو۔ دوسرا شخص وَشَابٌ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ، دوسرا وہ نوجوان ہے جن کی نشو و نما، جن کی پرورش اللہ رب العالمین کی عبادت میں ہوئی ہو، جنہوں نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارا ہو۔ اللہ رب العالمین کو جوانی کی عبادت بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ اکثر نوجوان اپنی جوانی کو گھومنے پھرنے میں، عیاشیوں میں گزارتا ہے، یہ سوچتا رہتا ہے کہ ابھی میں جوان ہوں، ہماری پوری زندگی ابھی پڑی ہوئی ہے، اور اس دھوکے میں وہ زیادہ تر نوجوان اپنی جوانی کو اللہ کی نافرمانی میں گزارتا ہے۔ لیکن وہ نوجوان جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارے، تو جو نوجوان اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے تو اللہ رب العالمین بقیہ زندگی کو بھی اسے اپنی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا کرتا ہے، اور اس کا خاتمہ بھی اس حال میں ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے۔ تیسرا وہ شخص ہوں گے
जिनका दिल मस्जिद से लटका हुआ हो, वह रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद। तीसरा वो शख्स है जिनका दिल मस्जिद में लटका रहता हो, जब वो मस्जिद में आता हो तो उसे सुकून नसीब होता हो, जब वो मस्जिद से चला जाता है तो फिर दोबारा मस्जिद में आने के लिए उनका दिल बेकरार रहता है। एक नमाज पढ़कर जाने के बाद दूसरी नमाज का इंतजार रहता है, बार बार टाइम को देखता है, घड़ी को देखता है। ज़ोहर की नमाज पढ़ करके आया हूँ, असर का वक्त हुआ है या नहीं हुआ है, बार बार घड़ी को देखता है कि असर का वक्त होगा तो फिर जाकर जमात के साथ नमाज मस्जिद में जाकर के पढ़ूंगा। एक नमाज पढ़ने के बाद दूसरी नमाज के इंतजार में रहता है, दूसरी नमाज का इंतजार उसके दिल में खटकता रहता है। चौथा शख्स जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श का साया नसीब करेगा, वह वरजुलान तहाब्बा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि। वो दो शख्स हैं जिन्होंने एक दूसरे से मोहब्बत की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा की खातिर मोहब्बत की, उसी पर इकट्ठे हुए और उसी पर जुदा हुए। पांचवा शख्स जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श का साया नसीब करेगा क़यामत के दिन, वह है वह रजुलुन दातहु इम्राअतुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। वह नौजवान है, वह आदमी है जिनको किसी खूबसूरत औरत ने, हुस्न जमाल वाली औरत ने, वो औरत मालदार भी हो, खूबसूरत भी हो, हस्ब व नसब वाली भी हो, और वो औरत किसी नौजवान किसी आदमी को तन्हाई में अकेले में बदकारी के लिए बुलाए, जिना के लिए बुलाए, या मोबाइल में फोन करके बुलाए कि आज मैं अकेले हूं, आ जाओ, घर में कोई नहीं है, लेकिन वो शख्स कहता है इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूं। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के डर की वजह से वो बदकारी को छोड़ देता है। वाकई अगर कोई औरत तन्हाई में खूबसूरत हो और वो बदकारी के लिए बुलाए तो उससे बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन उस शख्स के लिए बहुत आसान है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हो। जैसा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज मिस्र की बीवी ने दरवाजा बंद करके बुलाया, बदकारी करने की तरफ बुलाया, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा माअज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह। छठा वो शख्स जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना साया नसीब करेगा, वरजुलुन तसद्दक़ा बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तालमा शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। कि वो शख्स है जिन्होंने सदका इस तौर से किया कि उसके बाएं हाथ को पता भी ना चल सका कि उसके दाहिने हाथ ने क्या खर्च किया है। यानी वो खुफिया तौर से सदका करता है, जिसका इल्म किसी को नहीं होता, वो दिखावे के लिए सदका नहीं करता है। जैसा कि आजकल लोग सदका करते हैं, जब 10 रुपए का नोट देना हो तो मुट्ठी बांध कर देते हैं, और 2000 का नोट देना हो तो खुले आम ऐसे दिखा करके देते हैं। तो वो शख्स इस तौर से सदका नहीं करता है,
बल्कि वो खुफिया अंदाज में सदका करता है जिसका इल्म किसी को नहीं होता। सातवां वो शख्स है वरजुलुन ज़कर अल्लाह अस्सा व जल्ला खालियन फफाज़त ऐनाहु। सातवां वो शख्स जिन्होंने अकेले में तन्हाई में अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के डर की वजह से उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए, आंसू बह गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, दो आंखें ऐसी है जिन्हें जहन्नम की आग छू नहीं सकती, वो शख्स जहन्नम में दाखिल नहीं होगा। एक वो शख्स जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन को तन्हाई में याद किया तो उसके आंखों से आंसू बह निकले। दूसरा वो शख्स जिन्होंने अल्लाह की राह में रात भर पहरा देता रहा। तो ये 7 किस्मों के लोग हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन अपने अर्शे इलाही के साए में जगह देगा, जब उसके साए के अलावा कोई साया ना होगा। जरा आप जान लीजिए कि उस दिन का मंजर कितना हौलनाक होगा। क़यामत का मंजर बड़ा हौलनाक होगा। आप उसकी लंबाई के बारे में सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। क़यामत के दिन कितना लंबा होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह मारिज के अंदर इरशाद फरमाता है, तारुजुल मलाइकतु वर्रूहु फी यौमिन कान मिक़दारुहु 50,000 सना, कि फरिश्ते और जिब्रील अलैहिस्सलाम उसके पास चढ़कर जाते हैं एक ऐसे दिन में जिसकी मिकदार 50,000 साल के बराबर होंगी। 50 साल नहीं बल्कि 50,000 साल के बराबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरी जगह इरशाद फरमाता है, फ़कैफ़ तत्तक़ून इन कफ़रतुम यौमन यजअलुल विल्दान शीबा, कि लोगों अगर तुमने कुफ्र की राह इख्तियार की, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की, दीन मुहम्मदी का इनकार किया, तो उस दिन के आज़ाब से कैसे बचोगे जिस दिन बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन का आज़ाब उस दिन इतना सख्त होगा, इतना हौलनाक होगा कि उस दिन बच्चे भी बूढ़े हो जाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुदना शम्सु यौमल क़ियामती मिनल खल्क़, कि क़यामत के दिन सूरज को मखलूक से बिल्कुल करीब कर दिया जाएगा, यहां तक कि सूरज उसके 1 मील की दूरी पर रह जाएंगे। सुलैम बिन आमिर कहते हैं, मील से मुराद मुझे मालूम नहीं कि उससे जमीन की मुसाफत है या वो सलाई है, वो डंडी है जिससे इंसान आंख में सुरमा लगाता है। तो क़यामत के दिन सूरज इंसान से बहुत ज्यादा करीब हो जाएगा। हर शख्स अपने अमाल के मुताबिक पसीने में शराबोर होंगे, पसीने में डूबे होंगे। कोई शख्स अपने टखनों तक पसीने में डूबा होगा, कोई अपने घुटनों तक डूबा होगा, कोई अपने कमर तक डूबा होगा, कोई अपने सीने तक डूबा होगा, कोई अपने कांधे तक डूबा होगा, कोई अपने मुंह तक डूबा होगा, कोई अपने कान तक डूबा होगा, कोई पूरा का पूरा डूबा होगा। ये मंजर होंगे, इतना सख्त हौलनाक मंजर होगा।
اور ایسی صورت میں یہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش الہی کے سایہ میں جگہ دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یا اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو یہ 7 اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے بھی ان 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو اپنے عرش کا سایہ قیامت کے دن نصیب کرے گا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔